जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरु पाजी, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना। नवा दिन दिखाने ਲਈ शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, नवे दिन दिखाने ਲਈ शुक्राना। और नवे दिन ਦੇ हर एक पल पल क्षण क्षण ਦਾ शुक्राना करदी ਹਾਂ मैं। हर एक दिन ਦੇ हर एक पल पल क्षण क्षण ਦਾ शुक्राना करदी ਹਾਂ मैं गुरु महाराज जी। ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 11 ਤਰੀਕ ਹੈ, 11 ਅਕਤੂਬਰ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ 11:50। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾਨਗੇ ਜੋ ਬੁਲਵਾਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਭ ਬੜੇ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟਿਆਂ ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਕੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿੰਕ ਕਦੇ ਜੁੜੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹੋ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਲਾਈਫ ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਰਵੇ ਤੇ ਵਰਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਿਭੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ, ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਹੋਈ,
ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਰਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਭਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵਰਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਂਦ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਏ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਰਾਤੀ। ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਂਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਾਂਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਂਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਕਰਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸਨੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਰਵੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲਾ ਚਲਦੀ ਰਵੇ, ਘਰ ਚ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, 3 ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਚਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚੁਗ ਕੇ ਦਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੀਚੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸਫਾਈਆਂ ਸਫੂਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਕਿਚਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਦਈਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਈਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਆਪੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ satsang ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੋ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਕੋਈ satsang ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁੰਨਰੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਏ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਵਾਈਨ ਮੈਸੇਜ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ એનર્ਜੀ ਵਾਲੀ ਭੀੜੀਆ ਔਰਤ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਭੇੜੀਏ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਤੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਐ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਐ। ਤੇ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਹੈਡੇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕਦਮ, ਹੈਡੇਕ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲਈ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖਦੀ ਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੇੜੀਆ ਭੇੜੀਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਭੇੜੀਆ ਔਰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੇੜੀਆ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਏ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਰ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੂਰਨੀਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਘਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬਸ, ਤੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ satsang ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਚੀਂਟੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਚੀਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਟੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ satsang ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁੜ ਵਾਰ ਕੇ ਨਾ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਰੇਖਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੇਖਾ ਫੇਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਖਾ ਫੇਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਸਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ महाराज जी मैसेज बहुत अच्छे पॉजिटिव दे रहे हैं संगत जी। कहते जैसे कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में खास होते हैं, उनके लिए तुमको कुछ करना सुकून देता है, वैसे ही मुझे भी तेरे लिए करना, तुझे अच्छे से अच्छा देना, और तेरे मुंह से शुक्र सुनना बहुत सुकून देता है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, कर रही हूँ मैं शुक्राना। गुरु जी कहते तेरे मुंह तो शुक्राना सुनना मैंने सुकून देता है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਫੈਸਲੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਚੰਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। तेरी मेहनत का पानी अब बर्बाद नहीं जाएगा, तेरी अंधेरी रातों को अब सूरज की रोशनी मिलेगी। खुश हो जा, बहुत कुछ मिलने वाला है, शुक्राना कर, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरी तकलीफों का हिसाब आज खत्म कर दिया गया है। शनिवार के दिन तेरे जीवन की सिग्नेचर डेट बन चुका है। अब तुझे तरक्की, इज्जत, समृद्धि मिलेगी। शुक्राना कर, रहस्य को आगे बांट, क्योंकि तेरा कल्याण का मार्ग है। सो यही तेरा कल्याण का मार्ग है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, ਅੱਗੇ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਆਸਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਬਈ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੱਟਣ, ਸਭ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੌਸਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लव यू गुरुपा जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत के आगे गुरु जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी स्तासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी स्तासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना। अमृत वेला करवाने का शुक्राना, उठाने का शुक्राना गुरु जी, सुलाने का शुक्राना, खिलाने का शुक्राना गुरु जी, दात जो बख्शी है उसके लिए शुक्राना, सेवा भाव देने के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे साथ हमेशा रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी के सर पर हमेशा अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं माँ शिव की बेटी हूँ। मेरे सर पर मेरे माँ शिव का हाथ है, मेरे गुरु जी का हाथ है। मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरे गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। मेरे बेटे की मेरी गुरु जी शुक्राना। कल आप इसको भैरव बाबा के दरबार पर लेके गए गुरु जी। मेरा बेटा बहुत ही ज़िद्दी हो रहा था संगत जी, बहुत ही ज़िद्दी हो रहा था और कह रहा मम्मी जब मुझे भैरव बाबा का झाड़ा लगा ना, मेरा एकदम पहले में ना भारी भारी हो रहा था सर और एकदम हल्का हो गया। पता नहीं गुरु जी वो क्या चीज़ थी जो मेरे बेटे को तंग कर रही थी। गुरु जी शुक्राना मेरे बेटे को आप मंदिर लेके गए। हमेशा लेके जाना, हर शनिवार को लेके जाना गुरु जी और उसकी ये चीज़ ख़त्म कर दो गुरु जी। जो भी इस पे कष्ट है गुरु जी, उसकी कष्ट ख़त्म कर दो। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा गुरु जी, स्कूल नहीं जा रहा। फ़ीस की दिक्कत हो रही है गुरु जी, बहुत फ़ीस की दिक्कत हो रही है। प्रिंसिपल ने मना कर दिया उसको फ़ीस पे नहीं बिठाना। तो गुरु जी एडमिशन में कितना बहुत ज़्यादा एडमिशन है गुरु जी। कहने को संगत का स्कूल है तब भी उन्होंने इतना बड़ा मेरे साथ वो किया। उन्होंने पहले कहा था कि फ़ीस पे बिठा लेंगे, उसके बाद कह रहा डायरेक्ट एडमिशन कराओ गुरु जी। मैं भी कैसे करवाऊँगा, इतना मैं गोल्ड बेचूँ गुरु जी। मैं तो हो जाऊँगी और उसके फादर कह रहे कि अगले साल तेरा एडमिशन कराऊंगा गुरु जी। आगे पता नहीं गुरु जी। और आप कहते जो 2 औरतें हैं वो मेरे पति अंकल को कर रही है और गुरु जी इस वजह से मेरे पति अंकल है ना हमसे बात करते हैं। हम दोनों ना मेरे बेटे से ना मुझसे, ना हमको पैसा देते हैं, ना मेरे बेटे के फ़ीस में पैसा लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे गुरु जी। बस उनको तलाक चाहिए, तलाक तलाक करते रहते हैं गुरु जी। वो जो औरतें हैं गुरु जी, उनका जो भी ब्लैक मैजिक कर रही है, जो भी काल क्रिया करवा रही गुरु जी, उनको उनके किए की सज़ा दो गुरु जी और मेरे पति को इन बंधनों से मुक्त कर दो गुरु जी। जो भी काल क्रिया है गुरु जी, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरु जी, उनकी वशीकरण काट दो गुरु जी। आपने सुनवाया था सत्संग कि मैंने तेरे पति का वशीकरण काट दिया। शुक्राना गुरु जी, उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मेरे पति के रिश्ते में सुधार लाओ गुरु जी, सुधार लाओ। वो बिल्कुल नहीं फ़ोन करता गुरु जी, ना मेरे बेटे को ना मुझे फ़ोन करता है, पूछता भी नहीं गुरु जी। उसको हमारी पड़ी ही नहीं है गुरु जी, उसको हमारी पड़ी नहीं है गुरु जी। उसको सद्बुद्धि दो। और आप कहते हो कि उसको हीरे जैसा चमका के भेजूँगा तेरे पास गुरु जी। आपने मुझे सत्संग में भी सुनवाया, आपने मुझे टेलीपैथी से भी मेरे को ये भेजा था मैसेज। शुक्राना गुरु जी। आपने कहा था तुम दोनों के रिश्ते को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तुम्हारी जो नज़र दोष है हटा रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी। उस इंसान का घमंड तोड़ दो गुरु जी, मेरे पति अंकल का। उसको घमंड होता है गुरु जी, उसको घमंड है पैसों का गुरु जी, पैसों का घमंड है गुरु जी। इस वजह से उसने केसेस किए लोगों में के बहकावे में आके गुरु जी। मुझे नहीं पता 2 औरतें कौन है गुरु जी, पर मेरा घर से जीवन आप ही बचा सकते हैं गुरु जी। मेरी काली माता, मेरी बंगलामुखी माता, गुरु जी ने बोला बंगलामुखी तंत्र विद्या से तेरा घर बर्बाद किया जा रहा है। ये बंगलामुखी माता मेरी रक्षा कर माँ। मैं कुछ नहीं कर पा रही, तेरी बेटी कुछ नहीं कर पा रही। तेरी बेटी के पास इतना पैसा नहीं है माँ कि वो उपाय में लगा सके। मैंने बहुत पैसा वेस्ट कर दिया माँ उपायों में। मेरे घर वाले भी मुझे बोलते उल्टा सीधा। माँ मेरी सुन ले माँ, अपनी बेटे की पुकार सुन ले माँ। जो भी तांत्रिक क्रियाएं करवाई जा रही है, मेरी काली माता, मेरी बंगलामुखी माता, मेरी आदिशक्ति माता, मेरे पति के ऊपर से उतार माँ। मेरे पति को भेज मेरे पास माँ। हम दोनों माँ बेटे अकेले बैठे हुए अपने घर में माँ। गुरु जी जो जॉब दी है उसको ब्लेस करो गुरु जी। जब तक कुछ नहीं होता वो जॉब मैं आराम से करती रहूँ गुरु जी। मुझे उस प्रिंसिपल मैम से डर लगता है, उनका बिहेवियर बहुत ही गंदा है गुरु जी, बहुत ही गंदा बिहेवियर है उसका। कब क्या वहाँ के एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि वो कभी भी निकाल देती किसी को भी, वो अपनी इच्छा के अनुसार करती गुरु जी। मुझे इस काम में तरक्की दीजिए, इस काम में किसी की नज़र न लगे, कोई भी गुरु जी पॉलिटिक्स ना करे मेरे खिलाफ़ गुरु जी। मैं शांति से काम करती हूँ, अपनी सेवा दे रही गुरु जी। मेरे साथ हमेशा रहना गुरु जी, हमेशा रहना। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे पितरों, शुक्राना नीम करोली बाबा, शुक्राना हनुमान बाबा, शुक्राना आप सबका। मेरा साथ दीजिए, 33 करोड़ देवी देवता मेरे साथ दीजिए। मेरे डिवाइन, मेरे आर्कएंजल, मेरे पूरे जितने भी मेरे डिवाइन है, मेरे एंजल्स है, आप सबको थैंक यू, आप सबका शुक्राना। मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मुझे फील करवाने के लिए कि हम आप सब मेरे साथ हो गुरु जी।
शुक्राना शुक्राना मेरे एंजल्स, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमेशा मेरे साथ रहना। और मेरे पति अंकल को बुद्धि दो मेरे एंजल्स, मेरे पति अंकल को बुद्धि दो, उसको सुधारो, उसको सुधार के लाओ गुरुजी मेरे पास, उसको सुधार के लाओ। कोर्ट कचहरी के केसेस ख़त्म करवा दो गुरुजी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है गुरुजी लड़ने के लिए। आपको आपकी बेटी की स्थिति पता है गुरुजी, ख़त्म करवा दो ये कोर्ट कचहरी के केसेस, ख़त्म करवा दो गुरुजी, ख़त्म करवा दो गुरुजी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बोले तेरी तकलीफ़ों का हिसाब आज ख़त्म कर दिया है। आज शनिवार के दिन तेरे जीवन की सिग्नेचर डेट बन चुका है। अब तुझे सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि मिलेगी। शुक्राना कर उस रहस्य के आगे पाठ, क्योंकि यही तेरे कल्याण का मार्ग है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बोला 24 घंटे तेरे परिवार पर भारी है सत्संग। गुरुजी ने सुनवाया सत्संग। गुरुजी जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे परिवार पे, मेरे पति अंकल पे, मेरे बेटे अंकल पे, मुझ पे गुरुजी काट दो गुरुजी, ब्लैक मैजिक सारा काट दो गुरुजी। सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट कटवा दो गुरुजी, मेरे पति अंकल मेरे कष्ट कटवा दो। हमारे ऊपर ये क्यों काल क्रिया करवा रहे गुरुजी, इनको दंड दो, इनकी किए का गुरुजी, इनको किए की सज़ा दो गुरुजी। इन्होंने आपकी बेटे का घर बर्बाद किया गुरुजी, इनको किए की सज़ा दो गुरुजी, किए की सज़ा दो। गुरुजी ने बोला आज गुरुजी सारी मुरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया, बस विश्वास रख, शुक्राना कर। वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुई थी अब दूर हो रही है। तेरे करियर में, तेरे सेहत में, तेरे हर रिश्ते में गुरुजी की कृपा बरसने वाली है। ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए है, इसे आगे बांट कर शक्ति को और बढ़ा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। मेरे लिए इतना सोचने के लिए बेटा खुश हो जा, मैंने तेरी सारी तकलीफ़ें दूर कर दी है, तो भी शुक्राना करके अपने गुरु को खुश कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी, साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे साथ देने के लिए शुक्राना। गुरुजी ने बोला बेटा पैसों का इंतज़ाम हो चुका है, जो तू सोच भी नहीं सकता था वो मिलने वाला है। तेरी किस्मत की लॉटरी लगने वाली है, तेरे नाम की चिट्ठी ऊपर से निकल चुकी है। अब सिर्फ शुक्राना बोल, इंतज़ार कर उस दिन का जब सब तेरी तरक्की देखेंगे। ये संदेश किसी और ज़रूरतमंद तक पहुँचा दे, तेरी झोली में भी भर जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। सदा सुहागन रह, तेरे पति की उम्र बहुत लंबी होगी। शुक्राना कर, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरा साथ देने के लिए मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दो गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो। नीम करोली बाबा का मैसेज है, विश्वास रखोगे तो वो भी होगा जिसकी तुमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। राम राम, जय श्री 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 राम। मैं नीम करोली बाबा, हमेशा मेरे साथ रहना बाबा, हमेशा मेरे साथ रहना। गुरुदेवा तेरी पीड़ा तेरी ताकत है, इसे कमज़ोर मत मान। ये दर्द तुझे ऊंचे उठाएगा, बस ये पहचान सफलता तेरा इंतज़ार कर रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बोला मुझे पता है तू बहुत दुखी है, ना कोई तेरी कदर करता है, ना परेशानी कम हो रही, कर्ज बढ़ते जा रही, बीमारियां पीछे नहीं छोड़ रही। लेकिन आज का ये संदेश इसलिए मिला है क्योंकि गुरुपा ने तुझे देख लिया है। अब सब ठीक हो जाए, बस शुक्राना कर, विश्वास मत छोड़। ये संदेश उस तक भेज जो बिल्कुल टूट चुका है। शुक्राना गुरुजी। अब मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी इस दासाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी इस दासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं परेशान मत होना। मैसेज, परेशान मत हो। तेरे दुख दर्द पीड़ा का आज अंतिम दिन है। इसके बाद तेरा परिवार हंसता खेलता नजर आएगा। तू जश्न की तैयारी कर, क्योंकि तेरे घर के बाहर अब आस्थ सिद्ध लक्ष्मी धन दौलत यश कीर्ति वैभव से भर जाएंगे। गुरुजी का इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स बख्शने का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कहा अब तेरी नोटों में खेलने की बारी है। अब तेरी रौनक 20 गुना बढ़ जाएगी। आज तेरे घर से सारी दरिद्रता, बीमारी, नेगेटिविटी, बेरोजगारी समाप्त कर रहा होगी। क्या तू तैयार है? वो कल्याणकारी हिंट ड्रीम में पाने को तैयार है? तो बस शुक्राना कर। ये विशेष है सुख शांति का एहसास करने के लिए। मैं गुरु पिताजी का संदेश जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाना। गुरु पिताजी आपका ब्लेसिंग्स बख्शने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, माँ काली की कृपा से गुरु जी महाराज शनिदेव से साथ इंसाफ करने
देखते हुए आज प्रपोजल और नए नए अवसर आज गुरुजी बख्श रहे हैं। गुरु पिताजी ने नए नए मौके बख्शने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत गुरुजी कह रहे हैं, एक बार सब कुछ नए सिरे से शुरू कर। हम देखते हैं अब सारी काली और नेगेटिव शक्तियां को। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना आकर रास्ता दिखाने का। गुरु पिताजी, अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें। आप ही हाथ पकड़कर गुरुदेव करवा दो। संगत जी, जब सामने से जाते हुए इतने रास्ते नजर आए तो समझ ना आ रहा हो कि किस पग पर चलना है, तो सब कुछ गुरु पिता पर ही छोड़ देना चाहिए। जहाँ गुरु पिताजी को चलवाना होगा चलवा देंगे। गुरु पिताजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं तुझे अब इस उम्र में 50 साल में अपने बच्चों के लिए नई शुरुआत करनी पड़ेगी। गुरुपा, अगर आप साथ रहेंगे तो शायद हम कुछ कर पाएँ, मंजिल पा लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव, अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तब तो कुछ कर पाएंगे, अब तो हम सत्संग ही सुनते रहते हैं, तो काम कब करेंगे गुरु पिताजी। जी, हम मानते हैं वो भी ज़रूरी है, पर गुरुपा केवल 1 या 2 सत्संग ही 2 घंटे ही हम सुन सकते हैं, पूरा दिन में नहीं सुना जा सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज बड़ी बेटी का हाफ ईयरली का रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आया, आप ही देख लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसकी लाइफ खराब हो रही है गुरुदेव, आप उसको सद्बुद्धि बख्शो। गुरुदेव, आपको सब घर का हालात पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव, दिवाली में भी अब कुछ दिन शेष रह गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने इस पूरी जर्नी में गुरु जी ने हमें जोत में दर्शन, चाय में दर्शन, रोटी प्रसाद में दर्शन, कड़ा प्रसाद में दर्शन, पीकॉक के रूप में दर्शन, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन और सारी ट्रिपलेट नंबर्स में दर्शन गुरु पिताजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। गुरु जी का खुशबू में दर्शन दिए। गुरुदेव का अनंतम अनंतम शुक्राना। इन सारे रूपों में आकर अपनी प्रेजेंस दिखाने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज तो केवल रास्ता ही दिखा सकते हैं, चलना तो हमें ही होगा, लेकिन हम फिर भी नहीं चल पाते। गुरु पिताजी, बल दीजिए हमें चलने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज के दिन, कल करवा चौथ पर रिश्ता जो रूट कर चला गया था, कल करवा चौथ पर 10-10 की ब्लेसिंग्स के साथ गुरुपा ने कल वो रिश्ता भी लौटा दिया। गुरु पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के कहते हैं, माफ़ कर दो सबको। गुरु जी, माफ़ तो तब करें जब कोई माफ़ी मांगे, बिना माफ़ी के कैसे माफ़ कर दें। हमें क्या पता कौन माफ़ी मांग रहा है, जब सामने वाले को अपनी गलती का एहसास ही नहीं तो कैसे माफ़ कर दो। आप ही देख लो गुरु पिताजी, हम तो पहले ही सबको माफ़ कर चुके हैं, इसीलिए शांत होकर बैठे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे मन में कुछ भी नहीं है किसी के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी के बहुत ही सुंदर सुंदर संदेश आ रहे हैं। कहते हैं, बेटा तू कहता है ना गुरु जी आप मेरी नहीं सुनते, तो आज मैंने सुन ली, जा तेरा कल्याण करता। बता बेटा क्या चाहिए। आज तुझे तेरे गुरुपाद शनिवार को तेरे घर आ रहे हैं, खास ब्लेसिंग्स और डिवाइन गिफ्ट लेकर। शुक्राना कर, जो मांगेगा आज मिलेगा। ये संदेश आगे भेज और तेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का शुक्राना कर दिया करो, फिर तो वो भी मिलना है जो तक सोचा भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तेरे घर की चौखट से मैंने हर नेगेटिविटी बाहर निकाल दी है, जा ऐश कर, अब शांति और प्रेम ही बरसेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह कभी मत सोच कि तुझे ज़िंदगी में देर हो गई है। याद रख, हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। चिंता ना कर, तेरा कामयाब होना निश्चित है। जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा।
गुरु जी कहते हैं बेटा आज शनिवार की रहमत तुझे अनमोल उपहार देने आई है। तेरे हाथ में वो सौदा आने वाला जो तुझे वर्षों से नहीं मिला था। आज तेरे नाम की चिट्ठी ऊपर से निकली और उसमें लिखा है खजाना मिलेगा, पर पहले तू शुक्राना कर। जिन ख्वाहिशों को तूने दबा रखा था आज गुरु जी और शनिदेव ने वो सुन ली है। तेरे जीवन की तिजोरी अब खाली नहीं रहेगी। बस दिल से कह दे शुक्राना गुरु जी, जय शनिदेव, और इस देव संदेश जरूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि रहमतें बांटने से बढ़ती हैं। जी गुरु जी महाराज आज के पावन दिन संदेश को जरूर जरूरतमंद तक पहुंचाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वही कहते हैं बेटा भरोसा रखो, जो आपके लिए तय है वो किसी और को प्राप्त नहीं होगा। धैर्य रखो और समय आने दो। वक्त बदलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। स्वयं को स्वयं ही खुश रखो। जो कर्ण में विराजमान है, जो हमारे भीतर भी है, वो कुछ भी कर सकता है। बस सब्र और विश्वास रखो। गुरु जी महाराज का संतोष और सब्र बख्शने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। आपस में प्रेम बख्शने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। तेरी तकलीफों का हिसाब आज खत्म कर दिखा गया है। शनिवार का ये दिन तेरे जीवन की सिग्नेचर डेट बन चुका है। अब तुझे सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि मिलेगी। शुक्राना करो इस रहस्य को आगे बांट, क्योंकि यही तेरा कल्याण का मार्ग है। संग जी गुरु जी हमें पहले कहीं से भी इज्जत सम्मान नहीं मिलता था, जो गुरु जी महाराज ने आज चारों ओर से बख्श दिया है। अब सभी लोग रिस्पेक्ट देने लगे हैं संग जी, और शत्रु भी हमसे बहुत डरने लगे हैं। ये सब गुरु जी महाराज की ही कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संग जी गुरु जी कहते हैं तेरा कुछ खो गया था, अब वो सदा के लिए तुझे मिलने वाला है। जिस चीज़ की कमी थी उसे ब्लेस्ड कर देता। तेरे मेरे इस रूप के दर्शन करके तेरी सारी उदासी दूर हो जाएगी। तू बस अपना नंबर संभाल, कुछ बड़ा करने वाला हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संजय जी गुरु जी कहते हैं बेटा तू कहता है ना गुरु जी आप मेरी नहीं सुनते, तो आज तेरी सुन ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय जी नीम करोली बाबा जी कहते हैं तुम किसी को जल्दी पसंद नहीं आते। पीठ पीछे लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, क्योंकि तुम ना गलत करते हो ना ही गलत सहते हो। बेटा इस झूठी दुनिया में सच्चे लोगों को संघर्ष करना ही पड़ता है, लेकिन जीत तो सच्चाई की होती है। इंसान धोखा देता है, लेकिन कर्म धोखा नहीं देते। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सफलता दिलाना मेरा काम है। तुम्हारा काम से मेरे कहे अनुसार चलना है। तुम सीता राम नाम जाप करो, हनुमान चालीसा ज्यादा करो। जय जय नीम करोली बाबा, जय सीताराम, जय श्री हनुमंत। संगत जी गुरु जी पिताजी कह रहे हैं कि जरा बात सुनकर जा, छोटी है लेकिन गहरी बहुत है। इस समय तेरी बेटी को मेरे दिव्य आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। समय का पहिया इतना तेज दौड़ रहा है कि संभावना ऐसी है कि उससे जाने अनजाने में कोई चूक हो सकती है, जिसका भुगतान उसको आगे जाकर करना होगा। मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर चलना तुझे ही पड़ेगा। कष्ट इससे पहले दस्तक दे तो फौरन उस दरवाजे को इस मंत्र के जरिए बंद कर दे। ओम त्र्यंबक रजामाय सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव कमी बंधनान सितोषरीय मामृतताम। बड़ा ही शक्तिशाली अस्त्र तुझे सौंप रहा हूँ। आज तेरे संदेश की अवहेलना बिल्कुल मत करना। अब ऐसे खड़े मत रहो, एक शुक्राना करो। गुरु जी महाराज आपका मंत्र बख्शने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज अब आप ही देख लीजिए, बेटी का कल्याण कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं आज तेरी अर्जी लग गई है, तुझे कष्टों से मुक्त कर देगा। आज का दिल से क्या शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटा अब तेरे काम भी हिसाब धन और नई प्रॉपर्टी तेरे ऊपर से कोई नजर हटा दी। अब शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी नीम करोली बाबा जी कहते हैं जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है, उस अपमान के भागीदार बने हैं, तुम्हारा मजाक बनाया हुआ है, बहुत घमंडी लोग हैं। अब इन लोगों से इनकी सबसे प्यारी चीज परमात्मा छीनने वाला है। बेटा लोहे को उसका जंग ही बर्बाद करता है, ठीक उसी प्रकार घमंडी लोगों को घमंड ही बर्बाद करता है। ये लोग तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। यह सब परमात्मा पर तुम्हारे विश्वास के कारण संभव। अब तुम्हारी रुकी हुई जिंदगी चलने वाली है, सब कुछ पहले से अच्छा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं,
और गुरुजी कहते हैं बेटा कुछ बुरा होने वाला है तेरे परिवार में, शुक्राना करती रहे, सब सही सलामत हो जाएगा। शुक्राना ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं बेटा। गुरुजी महाराज शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। कुछ भी जब आपका हाथ सर पर है तो हमारा परिवार कैसे सलामत नहीं हो सकता गुरु पिताजी। गुरु पिताजी आज सारा कष्ट काट दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरु जी महाराज। अब अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सरबत का भला करना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष बैठकर उनके चरण कमल में रखना चाहती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, मुझे पति कौन से बड़े संकट से बचाया आपने गुरु जी। आज मैंने अपने बच्चे को भी मार दिया गुस्से में, पढ़ नहीं रहा गुरु जी, उसको सद्बुद्धि दो, उसको विद्या का दान दो गुरु जी। आप कहते हो उस पर कष्ट है, उस पर संकट है गुरु जी। क्या संकट है गुरु जी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा गुरु जी। मदद करो हमारी, हमारे को सारे संकट ख़त्म कर दो, हमारे जो भी कर्म है गुरु जी काट दो, संकट काटो गुरु जी। अपनी बेटी अपने नाती के गुरु जी संकट काटो। बिल्कुल नहीं पढ़ता गुरु जी, उसको सद्बुद्धि दो गुरु जी। बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता, उसका ध्यान और चीज़ों में रहता, मोबाइल में, चीज़ में। इतना ज़िद्दी बन चुका गुरु जी, उसको शांत कर दो, उसको शांत कर दो। किसी की नहीं सुनता, ना नानी की ना मामा की गुरु जी, उसको शांत कर दो। मैं परेशान हो गया, आपके तो प्यार से समझाओ। मैं प्यार से इतना समझाती तब भी नहीं सुनता गुरु जी। आप ही संभालो गुरु जी, मैं थक चुकी हूँ। मैं अपने पति अंकल से परेशान हूँ, अब बेटा भी परेशान कर रहा है गुरु जी। मैं क्या क्या करूँ, आपकी बेटी क्या क्या करे गुरु जी। तरस करो गुरु जी, मेहर करो अपनी लड़की पे, मेहर करो गुरु जी, मेहर करो। इतनी कष्टियाँ मेरे जीवन में क्यों है गुरु जी, क्यों है गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं तेरी तकलीफ़ों का हिसाब आज ख़त्म कर दिया। शनिवार का ये दिन तेरे जीवन की सिग्नेचर डेट बन चुका है। अब तुझे सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि मिलेगी। शुक्राना करो, इस रहस्य को आगे बांट, क्योंकि तेरा कल्याण का मार्ग है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला तेरे पति के साथ तेरे रिश्ते की नींव पक्की कर रहा हूँ पुत्र, अब कोई नज़र दोष नहीं रहेगा। अपने पति की तरफ से भी आज सच्चे मन से शुक्राना कर संध्या वेले की हाजिरी लगा। तुम्हारा रिश्ता ब्लेस करने लगा हूँ। पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना पति अंकल की तरफ से। ठीक कर दो गुरु जी, सद्बुद्धि दे दो गुरु जी, उसको डिसीज़न मेकर बनाओ। वो दूसरों की बातों में आता है गुरु जी, उसको उस चीज़ से अलग करो गुरु जी। वो अपने मन की सुने, आपकी सुने गुरु जी। आप जाओ उसको समझाओ गुरु जी, मेरा कोई नहीं आपके सिवा गुरु जी, कोई नहीं समझा सकता। इतना घमंडी इंसान है गुरु जी, वो इतना घमंडी इंसान है। उसका घमंड तोड़ दो गुरु जी, उसका घमंड तोड़ दो, उसको सच्चाई दिखा दो गुरु जी। उसका घमंड तोड़ दो, घमंड तोड़ दो गुरु जी। उसको सच्चाई दिखाओ दुनिया की, क्या हो रहा है गुरु जी, सच्चाई दिखा दो। वो परेशान कर रहा है गुरु जी मुझे, अब परेशान कर रहा है मेरे बच्चे को गुरु जी। कुछ नहीं देता हमें, पैसा पूसा कुछ नहीं देता बच्चे की पढ़ाई के लिए। मेरे पास पैसा नहीं है। बच्चे ने बोला पापा मेरा एडमिशन करा दो, कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है, अगले साल कराऊंगा गुरु जी। मैं क्या करूँ, संकट काट दो गुरु जी, हमारे नज़र दोष जो भी है गुरु जी काट दो। जो भी शनि की ढैया है गुरु जी हमारे पे, मेरे पति अंकल मुझ पे जो भी नक्षत्र दोष है गुरु जी, आप कहते शनिवार को किया गया शुक्राना सारे नक्षत्रों को ठीक कर देता है गुरु जी। ठीक हमारे नक्षत्र ही बदल दो गुरु जी, हमारे जो भी नक्षत्र है उनको बदल दो। मेरे बेटे अंकल, मेरे पति अंकल, मेरे गुरु जी मैं मेहर करो गुरु जी, मेहर करो। शुक्राना गुरु जी ने आज रात के बाद तेरी सारी चिंता ख़त्म, मैं आप पे संभालूंगा सब। शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने बोला तेरे परिवार में एक पति पत्नी है जिन्हें बहुत जलन है। तुम्हारे परिवार के हर बनते काम में से वो तुम्हारा नुकसान चाहने की सोच रखते हैं, तुम्हारे आगे मीठे बनते हैं। मैंने उनके तंत्र टोटकों को जो भी उन्होंने किया है उनको पलटवार दे दिया है, तुझे आशीर्वाद दिया, तू शुक्राना कर बस। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी मेरा ब्रेसलेट भी टूट गया आज। कौन सा संकट था जो आपने अपने ऊपर लिया, और आपने आज सत्संग में एक आंटी से सुनवाया भी था कि उनकी बेटी पर संकट आया तो उनका ब्रेसलेट टूट गया। गुरु जी मेरे साथ भी यही हुआ गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरा संकट काटने के लिए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु जी बोला कान खोल कर सुन, जितना तेरे परिवार को मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता है उतनी डॉक्टर की दवाइयों की भी है। कोई गलत फैसला लेने से पहले 100 बार अपने बच्चों के बारे में सोच लियो। आज की रात चमत्कारी है तेरे लिए, क्योंकि तेरी सबसे बड़ी समस्या का अंत मैं आज करूँगा।
वो भी हमेशा के लिए। तू हमेशा बच्चों के लिए परेशान होती है ना, रात में उनका जीवन ही हीरे जैसा चमका दूंगा। मेरी बातों पर यकीन करती है तो उसे भी जिसके घर में इसकी ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने सत्संग सुना। पुत्र तेरे घर पंख लगाकर 2 खुशखबरी भेज रहा हूँ, सत्संग सुन। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छे सत्संग सुनवाते हैं। बेटा सुन ले मेरी बात, बीमारी कट जाएगी वरना मेहनत के पैसे ब्लैक मैजिक खा जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला तेरे पति हमेशा खुश थे, चंगा रहेगा, खुद पैसा कमा के देगा, मिल के शुक्राना करो। गुरुजी दोनों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना। गुरुजी ने बोला बेटी तू कहती है गुरुजी आप मेरी नहीं सुनते, आज मैं तेरी सुन ली। आजाद कल्याण करता बात बता मेरी बेटी क्या चाहिए। आज तुझे तेरे गुरु पास शनिवार को तेरे घर आ रहे हैं खास ब्लेसिंग और डिवाइन गिफ्ट लेके। शुक्राना कर, जो मांगेगी आज मिलेगा। ये संदेश आगे भेज, तेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य बदल देगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तेरे बच्चों का सिलेक्शन मैंने 1 नंबर A ग्रेड 1 नंबरों से कर दिया है। तू ना हद से ज़्यादा टेंशन लेकर बैठी है। तू जानती तेरे बच्चों के सिर पर मेरा दिव्य हाथ है, फिर भी क्या तुझे मालूम पर भरोसा नहीं है। बोल सारे सपने को पंख लगा दूंगा। खुशियों वो ढूंढ रहा है, उसे वो सब मिलेगा, लेकिन वक्त मेरा होगा, सब्र उसका होगा, जभी जाकर तेरा संघर्ष असली रंग लाएगा। एक छोटी बात बोलूँ, तेरा बच्चा बोला है उसका ज़रा ध्यान रखा कर, वरना किसी दिन कोई उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा लेगा, फंसा देगा। संदेश को अपने लिए एक चेतावनी समझ, बाकी फिक्र मत कर। कवच एक्टिवेट कर दिया है, शांति से बड़ी मत रह, तुरंत शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी। बेटे अंकल को बुद्धि दे दो, बुद्धि का ध्यान दो। मेरे गणपति बापा, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे पितरों मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। मेरे पितरों मैं समाधान चाहती, जो भी मुझसे भूल चूक हुई है, मेरे मायके परिवार, मेरे ससुराल पक्ष, मेरे नानके पक्ष के पितरों मेरे से को भी, जो मेरे मिसकैरेज हुए 2 बच्चों के जो छोटे जीव थे उनकी मैंने हत्या कर दी, उसको गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे समाधान दो। मेरे कुल देवी देवताओं, मेरे कुल देवता, मेरी कुल देवी, मेरे इष्ट देवता, मेरी काली माता, मेरी भद्र काली माँ, मेरे शनि भगवान जी, मेरे सारे कष्ट काट दो, मेरे कर्म काट दो। मेरे शनि भगवान जी, मेरे पति और मेरे कर्म काट दो, मेरे बच्चे के कर्म काट दो। गुरुजी मेरे 33 करोड़ देवी देवता रक्षा करो, हमारी मदद करो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। मेरी काली माता, मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दो, जो भी वशीकरण है उस पर, जो भी काल क्रिया करवाई गई है, उसका दिल बांधा गया हुआ, उसका मन बांधा गया। गुरुजी अपनी शरण में लो, उसको अपनी भक्ति में लगाओ, ताकि उसको सद्बुद्धि मिले, उसको सही फैसला करने के लिए उसको शक्ति मिले। गुरुजी इसको शक्ति दो सही फैसला करने की। गुरुजी मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आज आपने वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी शुक्राना मैं स्कूल से आ रही थी और आपने बटरफ्लाई, इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, वाइट, येलो, ग्रीन कलर की बटरफ्लाई और 777 आप मुझे एंजल्स नंबर भी दिखाते हो। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका, हर पल का शुक्राना। गुरुजी हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना। मेरे पति अंकल का आपने सत्संग में सुनवाया कि पति अंकल का वशीकरण काट दिया है, बेटे अंकल का भी संकट काट दिया है, बेटे अंकल का भी, और पति अंकल का वशीकरण काट दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस चीज़ के लिए। शुक्राना मेरे पति अंकल के जो भी वशीकरण है, ब्लैक मैजिक है, गुरुजी आपने काटा है, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी उसको सच्चाई दिखाओ, सच्चाई सामने लाओ। गुरुजी और जिन जिन लोगों ने मेरे घर को बर्बाद किया, मेरे परिवार को बर्बाद किया, गुरुजी जो भी, उनको मैंने माफ़ कर दिया, पर आप ज़रूर दंड देना। गुरुजी आप ज़रूर दंड देना। शनि भगवान मुझे न्याय चाहिए, मुझे इस गृहस्थ जीवन में इंसाफ चाहिए। शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटन कोट। शुक्राना मेरे बाबा का, बहुत बहुत बाबा, बहुत बहुत कोट कोट प्रणाम, कोट कोट शुक्राना बाबा। बाबा आपकी अनंतम ब्लेसिंग देने के लिए बाबा, ढेरों शुक्राना बाबा, करोड़ों शुक्राना बाबा, आपकी अनगिनत ब्लेसिंग के लिए बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, हर पल पल का शुक्राना मेरे बाबा, दिल से बाबा, सच्चे मन से बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
जय गुरु जी। प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। और मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार। सारे देवी देवताओं को कोट कोट प्रणाम और सभी को सत सत नमन। जय गुरु जी। जय माँ, जय बाबा, जय माँ, जय बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव। गुरु जी की बेटी लखनऊ से। यह मेरे संध्या वेले का शुक्राना। मैं आज का शनिवार का 11 तारीख का 20:43 पर बाबा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। बाबा का मैसेज है, पुत्र तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, खुशी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी और खुशी से नाच उठेगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हर सांस से, एक एक सांस से बाबा, एक एक रोम रोम से बाबा, दिल से बाबा, प्यार भरा शुक्राना मेरे बाबा। करोड़ों अरबों खरबों शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। दिलो जान से ज्यादा शुक्राना बाबा। संगत जी, बाबा कह रहे तेरी वो अरदास आज पावन दिन पे पूरी करने जा रहा हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अरदास पूरी करने के लिए बाबा आपको बाबा बहुत बहुत धन्यवाद और असीमित अपरंपार अनंतम शुक्राना बाबा। शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना। तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर अपने जैसी जरूरतमंद को भेज, जिसे कि उसके घर जाकर उन्हें भी ब्लेस करूं। जय गुरु जी। मैं ये बाबा किसी जरूरतमंद को, बाबा जिसे जरूरत हो बाबा, आप जाने जहाँ है बाबा, आप उसके घर जाकर बाबा उन्हें भी ब्लेस करना। आप जानते हो बाबा कि किसको ये ब्लेस की जरूरत है बाबा। जरूर ब्लेस करना जाके बाबा, जरूर ब्लेस करना। मैं संगत के साथ ये शेयर कर रही हूँ बाबा। दूसरा मैसेज है, बाबा कह रहे जो फोन हाथ में पकड़ रखा है उस पर तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना कर दे। जय गुरु जी। शुक्राना कर रही हूँ बाबा। आपके चरणों में स्वीकार करना बाबा। इस नादान अज्ञान अज्ञान पगली बेटी का शुक्राना बाबा स्वीकार कर लेना। जय गुरु जी। बाबा जो आपने बेटे का बड़ा कष्ट काटा है बाबा, उसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा मैसेज में कह रहे थे मैंने तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट एक काट दिया है। उसके लिए बाबा करोड़ों शुक्राना आपको। और बाबा जो बेटे को न्यू लाइफ देने के लिए भी बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। लख लख शुक्राना। और बाबा मेरे गुरुपिता कह रहे हैं कि भाग्य का पन्ना पलटने के लिए बाबा
कह रहे हैं भाग का पन्ना पलट दिया, उसके लिए तूने शुक्राना भी नहीं किया बाबा। मैं तो कर किया था बाबा, भाग्य का पन्ना पलटने के लिए बाबा करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा, अपरंपार शुक्राना बाबा, असीमित जिसकी कोई सीमा नहीं है बाबा, उतना शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपिता, मेरे परमेश्वर, अपनी इस बेटी का शुक्राना बाबा स्वीकार करना। जय गुरु जी। हाँ बाबा, कल आप बाबा संगत जी, कल जब मैं चांद देख कर छत पे गई थी और जब मैं उतर कर आई हूँ सीढ़ियों से, तो सीढ़ी पर बाबा ने मुझे अंदर, मेरे सीढ़ी मेरे घर के अंदर से है, तो मैं बाबा मुझे इतनी बड़ी ब्लैक ब्लैक तितली में बाबा सीढ़ियों पर, मैंने तो देखा भी नहीं बाबा, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और बाबा आके, जैसे मैं थाली लेके जोत उसमें जल रही थी और बाबा मेरे सामने ही आके ऐसे घूमने लगे। पता नहीं बाबा ही जानते होंगे, कोई बहुत बड़ा कष्ट बाबा ले गए अपने साथ काट कर। मैंने तो देखा नहीं। पति अंकल कह रहे थे यहाँ तो 3 दिन से बाबा बैठे हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा बाबा, इसके लिए कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। मैं इधर थोड़ा घर के कामों में बिजी थी, तो बाहर ज्यादा नहीं निकल के गई, इसलिए बाबा माफी मांगती हूँ बाबा। और कष्ट काटने के लिए बाबा करोड़ों अरबों शुक्राना बाबा। मुझे नहीं मालूम बाबा कौन सा कष्ट आप ले गए, कौन सी बीमारी ले गए बाबा, दुख दूर करने के लिए, काटने कष्ट काटने के लिए बाबा। अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना बाबा। और संगत जी, बाबा के रोज मैसेज आ रहे थे कि तेरी कोई औरत सातेर औरत है, जो वो एक मशान वाला सत्संग जो आता है कि हाँ तेरे दरवाजे पे मसान खड़ा कर दिया है, और वो इसके लिए भी बाबा, कष्ट काटने के लिए बाबा और तंत्र मंत्र काटने के लिए बाबा। मैं जानती हूँ बाबा कि कौन है औरत, 2 ही हो सकती हैं बाबा, उसमें से कौन है बाबा, ज्यादातर तो जानती हूँ बाबा। आप बाबा उसका चेहरा दिखाओ बाबा, उसका चेहरा दिखाओ बाबा, प्लीज बाबा। कष्ट बाबा ले जाने के लिए बहुत बहुत ढेरों बाबा शुक्राना, अनंतम कोटन कोट शुक्राना बाबा, अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए और पूरे परिवार के अंग संग रहने के लिए बाबा। अरबों खरबों शुक्राना बाबा। हे गुरुदेव, परमपिता परमेश्वर, मैं कैसे आपके बखान का वर्णन करूं, मुझे तो करना भी नहीं आता बाबा। आप मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं, अनंतम ब्लेसिंग देते हैं बाबा, लेकिन मैं आपके संकेत नहीं समझ पाती हूँ बाबा। आप मुझे टेलीपैथी से बाबा, मैं कहती हूँ आप सत्संग में या मेरे माइंड में थॉट डालकर या कैसे भी आप मुझे समझा दिया करें बाबा, प्लीज मेरे गुरुदेव। आप जानते हो कि आपकी बेटी ना समझ है, नहीं जल्दी ये सारी समझ पाती है बाबा। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपके चरणों में सर रख कर बाबा, क्षमा कर देना अपनी इस बेटी को। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। सारी संगत की तरफ से बाबा मैं शुक्राना कर रही हूँ, और जो संगत ना भी हो बाबा उसके भी दुख दूर करना। ये आपका ही संसार है बाबा,
आप संसार के रचयिता हो मेरे गुरुपिता। कोई जगत में दुखी ना रहे बाबा। कोई जीव दुखी ना रहे मेरे गुरुदेव, ये मेरी प्रार्थना है बाबा। इसको जरूर स्वीकार करना मेरे गुरुपिता। इस जगत में कोई जीवे हो ना दुखी, है विकट प्रार्थना, है विकट प्रार्थना। तू भी सक्षम है गुरुवर, तू भी सक्षम है। जय पिता, जय परमेश्वर। हे दीनानाथ, आप हर बात में बाबा, हर चीज में सक्षम हो बाबा। सब कुछ कर सकते हो बाबा, पल भर में बाबा। सभी के बाबा, सारे संसार के, सारे जीव जंतु के, सबके बाबा अंसन, सबकी रक्षा करना, सबके दुख दूर करना गुरुदेव। जय गुरु जी, सबका भला करना, सबको चढ़ती कला में ले जाना बाबा। माँ बाबा, आप दोनों बाबा हमेशा साथ रहना इस बेटी के, हमेशा साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, कोटन कोट शुक्राना। जय गुरु जी। और बाबा अपनी इस बेटी की बीमारी काटने के लिए जानते हैं बाबा कि आप धीरे धीरे सारी बीमारी काट रहे हैं बाबा। इसके लिए आपको करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता परमेश्वर, मेरे मालिक। सब कुछ आप ही हो मेरे भाई बंधु पिता परमेश्वर गुरु, सब आप हो बाबा। आपके चरणों में मैं सर झुका के बारंबार कोटन कोट शुक्राना कर रही हूँ बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार करना। जय गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। और जो भैया इसको ब्लेस करते हैं मेरे सत्संग को, उनको भी हे गुरु जी, उनकी भी झोलियां भरना, उनके घर में भी खुशियां लाना, जो उनकी मनोकामनाएं हो वो पूरी करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ बाबा, आज सत्संग में आप कह रहे थे, एक सत्संग सुना था उसमें कि मैं तेरे घर आया हूँ तीन देवियों के साथ और पैर की छाप कुछ रख के गया हूँ, तो पैर की छाप शायद छोड़ के गया हूँ बाबा। इसके लिए करोड़ों करोड़ों अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से, मन से, अंतरात्मा से बाबा शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी समूचे। मैं शुक्राना सत्संग अमृत वेला करने जा रही हूँ। मुझसे गुरु जी वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हो, मुझसे वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना।
गुरु जी संगत जी, ये जानते हैं कि हम लोग कोशिश करें कि हम सब समय ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन गुरु जी हमसे वही बुलवाते हैं जो बुलवाना चाहते हैं, जो हमसे वही कहलवाते हैं जो आप कहलवाना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम भाव शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें गुरु जी ने अगले अगले दिवाली में संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी संगत जी कि ना ही हमारे घर में कोई दिवाली ढंग से हो पाई थी और ना ही कोई हम लोग दिवाली का फेस्टिवल अच्छे से मना पाए थे संगत जी। कोई भी फेस्टिवल अगले साल हम लोग अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे संगत जी, क्योंकि मेरा तबीयत दुर्गा पूजा से ही ख़राब चल रहा था और लास्ट दिवाली तक मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ गई संगत जी। और ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हुआ था संगत जी, क्योंकि उन लोगों ने मेरी तबीयत ब्लैक मैजिक के कारण इतने ख़राब कर चुके थे संगत जी, इतने ज़्यादा ख़राब कर चुके थे कि मानो मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और गुरुजी ने ऐसे करके मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया संगत जी। मेरी इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी कि डॉक्टर ने भी मुझे जवाब दे दिया था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो ऐसा ऊपर वाले के हाथ में है, बस अब ऊपर वाले का नाम लीजिए और आगे जो होगा भगवान देखेंगे। हम तो अपने पूरे तरह से पूरा एफर्ट लगा देंगे, पूरा तरह से कोशिश करेंगे, आगे आपका भाग्य और भगवान मालिक है। तो बस भगवान को बोलिए कि गॉड के पास प्रेयर करिए कि गॉड आपका सुन ले और आपकी वाइफ को नई ज़िंदगी दे। तो मेरे अंकल जी और मेरे बेटे अंकल जी बहुत परेशान थे समझ जी, मतलब रोज़ दवा बदल बदल के चलाया जाता था। पहले मेरा 1 महीना घर में इलाज चला संगत जी, फिर मैं ठीक नहीं हुई और ज़्यादा मेरी परिस्थिति ख़राब होते जा रही थी, मेरा तबीयत ज़्यादा बिगड़ते जा रहा था। तब मेरी जो छोटी वाली बहन है, मैं नहीं जानती थी संगत जी कि मेरी छोटी वाली बहन मेरे साथ इतने धोखा करेगी, इतनी गद्दारी करेगी कि हमें अपने घर में बुला के और हमारे ऊपर तंत्र क्रिया करवाई रही थी। और हम मजबूर थे संगत जी, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी और दूसरे मेरे घर में कोई करने वाला नहीं था और मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी संगत जी कि मुझे उठाना किसी के भरोसे मुझे उठना पड़ता था बिस्तर से, मुझे उठा के बैठाया जाता था, फिर मुझे दवा दिया जाता था। ऐसे करके मेरी जर्नी 1 महीने तक घर में मेरा इलाज चला। मुझे बहुत कुछ शरीर में झेलना पड़ा था संगत जी, क्योंकि मुझे विटामिन का बॉटल चल रहा था, पानी चढ़ रहा था, कोई से कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा था संगत जी। और मेरे ना खाने का ठीक था ना पीने का, जो भी मैं खाती थी उल्टी हो जाती थी, वोमिटिंग होने लगती थी संगत जी, और मैं खा नहीं पाती थी। फिर मेरी बहन बार बार मुझे डांट लगाती थी, खाओ खाओ, नहीं खाओगी तो ज़िंदा कैसे रहोगी। एक तरफ मेरे
दिखाती थी कि मेरी सेवा कर रही है, मेरी सहानुभूति बटोर रही है, मेरे उसके जैसा कोई शुभ चिंतित नहीं है, और दूसरी तरफ मेरे ऊपर ही करा धरा के रखते जा रही है, ये करते जा रही थी, तंत्र क्रिया करवाते जा रही थी संगत जी। लेकिन गुरु जी तो हमारे सब कुछ जानते हैं, और गुरु जी से तो कुछ छिपा नहीं है समझिए। फिर गुरु जी ने मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई समझिए, इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं हॉस्पिटल में मुझे एडमिट होना पड़ा, और मेरे अंकल जी और मेरे बेटे अंकल जी सिर्फ घर और डॉक्टर करते रहे। मतलब 4 महीना मुझे लेके 4 महीने तक 5 महीने तक परेशान होते रहे। लास्ट में हमें गुरुजी ने हॉस्पिटल में एडमिट कराई। उसके बाद मेरा 3 महीना इलाज चला कंटिन्यू समझ जी। तब जाके मैं घर लौटी, और मेरा जो मेरी छोटी सी बेटी थी, बेटी आंटी, उसे मैंने अपनी बहन के घर पे छोड़ रखा था समझ जी, क्योंकि हमारे बेटे अंकल और हमारे पति अंकल तो डॉक्टर घर करने ही में व्यस्त थे, मुझे लेके ही वो व्यस्त थे, क्योंकि वहाँ पल पल हर पल मतलब डॉक्टर वहाँ पेरेंट्स को ढूंढ रहे थे कि इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, इनके गार्जियन कहाँ हैं, तो हमें ये बतानी है वो बतानी है। तो ऐसे करके उन लोगों को हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था। और मेरी बेटी आंटी, मैं भगवान के भरोसे बस अपनी बेटी आंटी को छोड़ गई थी अपनी बहन के घर समझिए, और बहन के घर छोड़ गई थी समझिए। मानो मेरी बेटी पे भी मेरी बहन तंत्र मंत्र करना शुरू कर दी। उसका भी तबीयत 2 बार ख़राब हो गया। मैं हॉस्पिटल में थी और मुझे फ़ोन जाता था कि मम्मी बाबू का तबीयत ख़राब हो गया है। तो ऐसे करके संगत जी माँ बेटी पे जितने हो सके मेरी बहन तंत्र क्रिया करवाई। और मेरी भाभी तो कर ही रही थी संगत जी, और मेरी बहन भी हमें नहीं छोड़ा कहीं का। तो अब तो डर लगने लगा है संगत जी कि हम किस रिश्तेदार के घर जाएं और जाना आना करें, और मन भी करता है तो शंकर जी तो नहीं जा पाते हैं। कोई उन लोग का मानो ओकेशन फोकेशन रहता है, कोई उन लोग के घर में खुशी की चीज़ रहती है तो भी लोग बोलती है मैं नहीं जा पाती संगत जी, इन्हीं सब के कारण। क्योंकि अभी भी मेरे पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं हुई है संगत जी। मैं अभी भी शरीर से परेशानी चल रही हूँ, और मेरा दवा डॉक्टर ने पूरा 1 साल चलाने को बोला था, क्योंकि मेरे शरीर में बिल्कुल ब्लड ही नहीं था संगत जी, 0 पॉइंट ब्लड भी नहीं था। और मेरी रोज़ की एग्जामिनेशन चलती थी संगत जी। मेरा रोज़ ब्लड रिपोर्ट होता था, रोज़ ब्लड ये किया जाता था, लिया जाता था। रोज़ दिन भर में 3 बार 4 बार मेरा एग्जामिनेशन होता था ब्लड का। और ऐसे करके हम डॉक्टर ने आधे आधे घंटे पे 1 घंटे पे 2 घंटे पे मेरे ब्लड को टेस्ट करते थे, और जो भी प्रॉब्लम आती थी वो रिपोर्ट में लिखते थे और दवा चलाते थे। ऐसे करके मेरा 3 महीना बीता संगत जी। और मुझे अपनी बेटी आंटी का भी चिंता था कि वो अकेले वहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे अंकल जी बोलते थे कि हम क्या ही कर सकते हैं, हम मजबूर हैं। बेटे का भी वही हाल था, मेरा बेटा का भी तबीयत ठीक नहीं चल रहा था संगत जी। लेकिन सब गुरु जी की कृपा है, सब गुरु जी ही बचाए हुए थे, सबकी रक्षा गुरु जी ही कर रहे थे। क्योंकि मेरी बेटी, मेरे बहन और मेरी भाभी हमको कहीं से छोड़ा नहीं था संगत जी, कोई भी उपाय उठा नहीं रखा था जिससे हमको वो लोग मार ना दे। मेरे परिवार को जितना हो सका उन लोगों ने क्षति पहुंचाया, क्षतिग्रस्त किया संगत जी। फिर भी गुरु जी ही थे जो हमें हर
संकट से, हर झोल झपाटे से बाहर निकाला संगत जी। और हमारी 3 महीना की जर्नी हॉस्पिटल में पूरी हुई संगत जी, जिससे मेरा वहाँ इलाज चला। और उसके बाद मैं डॉक्टर से बोली, डॉक्टर मुझे 1 साल तक मतलब 9 महीने तक हमें बोले कि मैं डिस्चार्ज नहीं दूँगी, क्योंकि अभी आप उस अवस्थे में नहीं हो, उस हाल में नहीं हो जो मैं आपको अभी डिस्चार्ज दूँ। लेकिन आप इतने प्रॉब्लम बोल रहे हो कि आपके घर में कोई नहीं है, एक छोटी सी लड़की है, तो मैं सोचने पे मजबूर हो रही हूँ, तो ही मैं आपको छोड़ रही हूँ। लेकिन आपको घर में जाके भी कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप अपना ख्याल रखना है। सिर्फ ये नहीं कि अपना दवा ये बंद करके अपने घर के काम में लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप अपने घर पे भी जाइएगा तो कोई कार्य नहीं करिएगा, बस अपने ऊपर ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिएगा, और दवा और खाना टाइम पर प्रॉपर्ली लीजिएगा। क्योंकि इस बार अगर आप ज़रा से भी ये कर दी लापरवाही खाने पीने में, तो इस बार आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि गुरुजी भगवान बहुत मुश्किल से आपको नई ज़िंदगी दी है, तो इस ज़िंदगी का कदर करिए और अच्छे से रहिए कि फिर दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट होने का नौबत ना आए। तो संगत जी, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द अच्छे हो जाओ। पर संगत जी, मेरी बहन और मेरे जो भाभी हैं वो लगातार हमारे ऊपर इतने तंत्र क्रिया करवा रही हैं, इतने तंत्र क्रिया करवा रही हैं कि मानो हमें जीने देना ही नहीं चाहती, मेरे परिवार को खड़ा होने देना ही नहीं चाहती। और गुरुजी ने बार बार ये टेलीपैथी मैसेज में हमें मैसेज दे रहे हैं मनोज जी कि मैंने सिर्फ तेरे बहन के पास, तेरे अपनों के पास, तेरे अपनों से जोड़ा था, इसलिए कि तू अपनों के चेहरे देख ले अच्छे से, यही तेरे अपने हैं और यही तेरे तुझे मानना चाहते हैं और तेरे ऊपर तंत्र क्रिया करवा रहे हैं। साफ साफ गुरुजी ने हमें वो मैसेज दिया संगत जी, और सबके चेहरे दिखाएं कि जो हैं तेरे अपने ही तुझे बर्बाद करने पे लगे हुए हैं और तुझे शांति से, सुकून से तेरे परिवार में तुझे जीने देना नहीं चाहते, तेरे परिवार को जीने देना नहीं चाहते हैं। तो तू अभी भी वक्त है, संभल जा और सबके चेहरे देख। और कोई तेरा सच्चा रिश्ता नहीं है, जो है सो मेरे से ही तेरा सच्चा रिश्ता है और कोई तेरा सच्चा रिश्ता नहीं है। संगत जी, ऐसे हो गया था कि मेरा बेटा जाता तो ज़रूर था मेरे पास हॉस्पिटल में, हर चीज़ दवा ववा देने के लिए, हमारे जो रोज़ की जो ज़रूरतें की सामान डॉक्टर मांगते थे वो देने तो ज़रूर जाता था। लेकिन संगत जी, ना ही मेरे बेटे को मेरे से कोई लगाव था, ना ही मेरे बेटे को और ना ही मेरे अंकल जी को। मतलब वो बस अपना वो जिम्मेदारी एक बोलते हैं ना कि उनकी जो जिम्मेदारी है बस वो बस निभाते थे। और हमसे लगता था कि किसी को मतलब नहीं है संगत जी। ऐसे मुझे हॉस्पिटल में छोड़ देते थे कि मानो कुछ परवाह ही नहीं है। तो मेरी बहन इसके लिए भी मुझे कॉल करके बोलती रहती थी कि तेरे परिवार को तेरी कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, सब आप अपनों में मस्त है, बस वो अपना वो निभा रहे हैं जो जिम्मेदारी, कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो संगत जी, ऐसे करके गुरुजी ने मुझे सबके चेहरे दिखाए कि कोई तेरा सच्चा रिश्ता नहीं है, कोई तेरा अपना रिश्ता नहीं है, जो है सो मेरे से ही तेरा सच्चा रिश्ता है। और अच्छा जो माता पिता का रिश्ता होता है, भाई बहन का, सब मेरे से ही है तेरा। तो तू आँख खोल के देख ले। और ऐसे करके सबके चेहरे गुरुजी ने दिखाए। तो मुझे गुरुजी से यही कहना है कि गुरुजी, फिर मेरे वही सेंटेंस आ रहे हैं संगत जी, हर चीज़ वही हो रही है मेरे साथ। तो गुरुजी और मेरे आस पड़ोस वाले तो अलग ही लगे हुए हैं तंत्र क्रिया करवाने में संगत जी। रोज़ मानो रोज़ हमारे ऊपर तंत्र क्रिया करवाते हैं।
कुछ ना कुछ मेरे दरवाजे के आगे रख जाते हैं, फेंक जाते हैं, मेरी खिड़की के पीछे कर जाते हैं संगत जी। सारा दिन तंत्र क्रिया कराते रहते हैं। हम परेशान हो चुके हैं इतने कि अब तो हमें मानो कुछ समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। और ऐसे करके गुरु जी ने हमारा कष्ट काटा संगत जी। ऐसे करके गुरु जी के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई। और अप्रैल महीना से, अगले साल अप्रैल महीना से हमारे गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई थी संगत जी। अप्रैल महीना में गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा था और उसके बाद मानो कि इतने गुरु जी ने हमारी नींबू निचोड़ी है, इतनी नींबू निचोड़ी है कि अब तो रह ही नहीं गया है कि एक बूंद भी जो नींबू निचोड़ेंगे गुरु जी। लेकिन फिर भी अभी तक गुरु जी हमारी नींबू निचोड़े जा रहे हैं संगत जी। अभी तक जीवन में शांति नहीं आई है, सुकून नहीं आई है संगत जी। मुझे गुरु जी से यही कहना है कि गुरु जी अब इतना कृपा करिएगा कि इस साल ऐसा कुछ ना हो और मैं अपने बच्चों के साथ हर फेस्टिवल सेलिब्रेट अच्छे से करूं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। क्योंकि अगले साल तो गुरुजी आपने हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, पर इस साल गुरुजी ने कृपा करिएगा, इतनी हिम्मत ताकत दीजिएगा कि हम हर फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए अपने परिवार के साथ। इतनी रहमत बख्शिएगा गुरुजी। गुरुजी संगत जी, हमारा हेल्थ वेल्थ तो पहले ही खराब हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, लेकिन गुरुजी की कृपा से छोटी मोटी जैसे भी हो, छोटी सी ही खुशियाँ में हम खुश हो जाते हैं संगत जी। इतने बड़े स्थल पे कोई फेस्टिवल नहीं मना पाते हैं तो छोटे मोटे में ही करके मना के खुश हो जाते हैं संगत जी। और कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि गुरु जी ने बोला संगत जी कि तेरे अपने ही तेरे ऊपर मारण क्रिया करवा रहे हैं, तेरे पूरे हर चीज़ को बंधन करवा दिया है, बांध रखा है संगत जी। तो इसलिए तेरे परिवार में ऐसी दशा चल रही है कि तेरा हेल्थ वेल्थ दोनों खराब हो चुका है। पर तू चिंता मत कर, तू अपने गुरुपा पे बेहतर गुरुपा पे विश्वास कर, तेरे गुरुपा ही सब कुछ ठीक करेंगे। तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे बस सिमरन और सेवा करनी है, सत्संग सुननी है, तो बस इतना ही कर, बाद बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। मैं तेरा पीओ बैठा हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा, तू बस अपना सेवा सिमरन कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो गुरु जी, अभी गुरु जी संगत जी, अभी जो गुरु जी के पास अरदास लगाइएगा कि समय गुरु जी हमारे ऊपर इतनी रहमत करे, इतनी कृपा करे कि हमारी हेल्थ वेल्थ दोनों ठीक रखे और हर फेस्टिवल हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से मनाएं। इतनी कृपा करिएगा गुरु जी, दया करिएगा गुरु जी, माता जी, संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग वहीं पे विराम देती हूँ। अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी संगत जी। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगी संगत जी कि गुरु जी ने हमें हॉस्पिटल में तो एडमिट करवाया था, पर हर पल हर घड़ी हर मिनटों मेरा ख्याल रखते रहे थे गुरु जी संगत जी। तितली स्वरूप ने मानो संगत जी इतनी सारी तितलियाँ, जिस वार्ड में मैं एडमिट थी आईसीयू में, उसमें तो एक भी तितली नज़र नहीं आई संगत जी। उसके बाद आईसीयू से मुझे दूसरे ये में शिफ्ट किया गया, तो वहाँ मानो तितलियों की भरमार लगी हुई थी संगत जी। 2-3 तितलियाँ मेरे आगे पीछे, मेरे तकिए के पास, मेरे सोने की जगह में, मानो ऊपर से नीचे तक संगत जी गुरु जी मेरी रक्षा कर रहे थे। और ऐसे करके गुरु जी ने मेरा सभी कष्ट काटे हैं संगत जी। माता जी ने मेरी सभी कष्ट काटी है और मुझे हॉस्पिटल से घर तक पहुंचाया है संगत जी। क्योंकि गुरु जी ये बोल रहे थे कि तेरी
ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, तेरी सांसें ख़त्म हो चुकी थी, मैंने तुझे नई सांसें दी है। क्योंकि मैंने गुरुजी के पास यही अरदास लगाई थी, गुरुजी संगत जी, कि गुरुजी अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे होके अपने बच्चों के पास लौटूँ तो इतनी कृपा करो कि मुझे फिर से नई ज़िंदगी दो कि मैं अपने बच्चों के पास जा पाऊँ संगत जी। क्योंकि मैं भी सब पूरी उम्मीद छोड़ चुकी थी संगत जी, मगर वहाँ के डॉक्टर और गुरुजी की कृपा के से मैं इस संकट से बाहर निकल पाई संगत जी। और आज मेरे फिर वही सेंटेंस हो रहे हैं। तो प्लीज़ गुरुजी संगत जी हमारे ऊपर गुरुजी से हमारे लिए प्रे करिएगा संगत जी कि हमें फिर हमारी ज़िंदगी में ऐसी नौबत ना आए और हम गुरुजी के चरण शरण में सेवा में लगे रहें और अपना हर फेस्टिवल अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से मनाएं। इतनी कृपा इतनी रहमत करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी संगत जी ज्योति गुरु जी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर बेले का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी माता जी कृपा करें। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय नीम करोली बाबा जी। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय माता राम। संसहाय हो माता, हे माता रानी कृपा करो। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ शीतला, गुरु जी कृपा करें। नीम करोली बाबा जी, सभी मेरे इष्ट देवी देवता कृपा करें, दया करें गुरु जी, उन पे अपनी रहमत बख्शे, दया करें, हमारे पूरे परिवार की रक्षा करें, हेल्थ वेल्थ दोनों से मजबूत करें गुरु जी। बल बुद्धि विद्या दीजिए गुरु जी हमारे बच्चों को, कि सूझबूझ समझदारी से वो हर कार्य करे। बुद्धि दीजिए, दिमाग लगा के अपना हर कार्य पूरा करे समय से, और निरोगी तथा सुंदर काया दीजिए हमारे पूरे परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सर्वत का भला करो, सबका भला करो, सब संगतों का भला करो, सबको खुशियाँ दो गुरु जी। वो आंटी का भी खुशियाँ दो जो आंटी हमारा ये सत्संग शेयर करती है, उन्हें भी, उनके बच्चों को भी खुशियाँ दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी समय जी मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी समय जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। कल शाम से ही गुरुपा जी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सुबह के 7:33 हुए हैं और मैं निर्मा बोल रही हूँ। गुरुपा पिताजी, परमात्मा जी, संगत जी, आंटी जी, कल शाम से वो मेरा सेकंड देवर डोर के पास लगाया है, दरवाजा सामने, जहाँ पर ब्लैक मैजिक का देवता रखा है घर का। उस तैनी घर से ला करके यहाँ रखा है गुरु पास, सेकंड घर के पास। और वो शाम से गाड़ी लगाया है और पेट दर्द बहुत हो रहा है। और पेट दर्द वाले ब्लैक मैजिक को अभी सभी नष्ट करें गुरु पिताजी, परमात्मा जी, शुक्राना। और कान में मेरा सनसनाहट है वो ठीक हो जाए। अब पेट दर्द इतना हो रहा है कि बर्दाश्त से फाजिल है। शुक्राना गुरु पास, आपकी सुप्रिया का रक्षा करना, सत्यम की रक्षा करना, अपनी बेटी की रक्षा करना, अपने दिमाग की रक्षा करना। अभी वो सैलून गए हैं, उनके अंग संग्रहना गुरुपा, और उनके कोई भी ब्लैक मैजिक
उनके ऊपर सेंड न रहे। और भोर में गुरुपा गेट के बाहर 2-3 आदमी का दिखाया फेस। तो दुष्ट आत्मा जो भी होगा गेट के पास, तभी हम लोग गेट के बाहर सब कचरा को जलाए हैं गुरुपा, दीपावली के साफ सफाई का। तो वहाँ पर कुछ भी टच किया होगा तो आप जाने गुरुपा, जो भी कर रहा है वो अपना बिगाड़ रहा है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता है गुरुपा। लेकिन वो गड्ढा खोद रहा है अपने लिए, मेरे लिए नहीं गड्ढा खोद रहा है। जिस तरह से भी यहाँ बार लौटा के लेडीज लोग हैं, मेरे घर के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों लेफ्ट राइट साइड में दोनों गंदी औरत बहुत ब्लैक मैजिक वाली है, और दोनों ए नाम वाली है। और एक ए नाम वाली है जहाँ पे पीपल का गाछ है गुरुपा, वहाँ पे वीर कुंवर बाबा है, स्थान है। जो भी वहाँ पे गाय बच्चा देते हैं, उस गाय वाले सब कोई वहाँ पूजा करने आते हैं उस पीपल के पास, और वहाँ घोड़ा भी चढ़ाते हैं। सो उस जगह पे क्या है गुरुपा, जो देवता है उस देवता में भी लगा दिया जाता है गुरुपा। हम लोग को, चारों फैमिली को और लेडीज को फंसाया जाता है। जो इस देवता के बगल में लेडीज है पंडित है, उस लेडीज के ऊपर सारा ब्लैक मैजिक मेरा पुश्तैनी घर से ला करके 12 लोटा में रखा हुआ है, और उसी पोटली को दबा दिया गया है फर्श के नीचे। और जो मेरा देवर उसी फर्श पे बैठ के चेयर पे बहुत भेजता है सबके पास परेशान करने के लिए। बताइए गुरुपा, शुक्राना जी, अंकल जी, शंकर जी, वैसे आदमी क्यों जीवित है जो दूसरे को जान लेकर के अपने आप खुश होता है देवता के वजह से। अभी हमें चक्कर लग रहे थे गुरुपा, मैं अपना कान में वो वाटर डाली हूँ गुरुपा जो मैं सीलिंग पे अर्पण की थी, और उसको मैं घर में लाई थी गुरुपा। उसका मैं कल शाम को भी छींटा मारी अपने सभी रूम में, और अभी अपना कान में डाली हूँ गुरुपा, और वो पूरा गर्म निकल रहे हैं गुरुपा वाटर। मेरे कान को जो लरी है झुमका का, उसको तोड़ के 2 लरी वो लोग रख लिए हैं गुरुपा। तब 2021 में हमें माइंड डिस्टर्ब किया वो लोग देवता लगा करके। जो जिन देवता है, जिन आत्मा है मेरे घर में, उसे भस्म करें गुरुपा, उसे भस्म करें गुरुपा। उस जिन की औकात नष्ट हो जाए गुरुपा मेरा शरीर से। और जब भी ये नाम वाली औरत है, वो भी बहुत गंदा गंदा शक्तियाँ मेरे घर में देखते रहती है। मेरे हस्बैंड के पीठ के पीछे लगा करके सेंड करती है, मेरी पीठ के पीछे लगाती है, मेरे बेटा बेटी के पीठ पीछे भेजती है, उस औरत की सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाए। जबकि वो शंकर भगवान के सत्संग कराती है घर में, फिर भी वैसे लेडीज को औकात को नष्ट करें गुरुपा। शंकर भगवान के बेटा बेटी बन के, परमात्मा के बेटा बेटी बन के, यदि हम किसी का नुकसान करते हैं, किसी का हानि करते हैं, उसको कहीं क्षमा न मिले, कहीं भी दुनिया के कोई कोना में क्षमा न मिले। मेरा पेट अभी दर्द अभी सब ठीक हो जाए गुरुपा, मैं सत्संग करूँगी। शुक्राना गुरुपा, अभी सभी मेरा दर्द भस्म हो जाए। मैं उठते उठते गुरुपा का जल प्रसाद ग्रहण की, उठते उठते गुरुपा में जब चंदन टीका पिताजी के उतार करके जल प्रसाद में मिला कर तो पूरा पेट में लगाई तो बहुत राहत मिला। फिर अभी अभी से दर्द स्टार्ट हुआ है गुरुपा। मेरे पति बाहर गए हैं सैलून में अपना सेविंग कराने, तो मैं अभी अरदास की गुरुपा से कि आप अंग संग जाना गुरुपा, पिताजी परमात्मा जी, और उनके साथ कोई निगेटिविटी मत आने देना घर में। क्योंकि संडे के दिन लोग ज़्यादा चाल चलते हैं कि घर में है तो इसके घर में लड़ाई झगड़ा करवाए, हर बखेड़ा करवाए, तो सारा इसका नष्ट हो जाए। सेकंड देवर का खेल, इसका खेल को दाइंड करे मेरे गुरुपा, इसका खेल को दाइंड करे। और जब भी मैं हम पति पत्नी बेड पे रहते हैं पलंग पे, तो उस बेडशीट को भी ब्लैक मैजिक करके छोड़ दिया जाता है, उस पलंग को भी ब्लैक मैजिक डाला जाता है गुरुपा। जो मैं बहुत सत्संग में शेयर की हूँ कि गद्दा के नीचे 2 चावल रखा हुआ था बेड पे, उसके बाद गुरुपा सिंदूर में कलर करके उस चावल खिड़की पास रखा गया था, जो खिड़की के पास ब्लैक मैजिक रखा हुआ है उसे नष्ट कर दीजिए गुरुपा अभी से अभी। और सर्दी खांसी आपके शुक्रिया के भी हुआ है, टोना टोटका की वजह से मेरे अंदर भी सर्दी खांसी बैठा हुआ है, जो भी सभी नष्ट हो जाए। क्योंकि मैं जब सिजेरियन हो रहा था आपका सत्यम, तो सिजेरियन होने के बाद गुरुपा मुझे कोई सर्दी खांसी नहीं था, कुछ भी नहीं था।
आज मुझे वहाँ बेहोशी की हालत में मेरे शरीर में क्या डाला गया ब्लैक मैजिक के द्वारा से मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मेरे गला से कफ खाने लगा गुरुपा तुरंत। उसी टाइम से एहसास होता है गुरुपा कि दुष्ट आत्मा पापी आत्मा को डाल करके ये तुरंत इस चीज को पैदा करती है। तो उस औरत की नष्ट हो जाए सारी शक्तियाँ मेरे शरीर से, नष्ट हो जाए उसकी शक्तियाँ सारे आपके दिमाग की चीज से, शरीर से नष्ट हो जाए, बस हो जाए आपका सतिम सक्रिया के शरीर से। जितना भी गाड़ी लगाई 24 घंटा लगा कर ब्लैक मैजिक करे गुरुपा, उसी के माथा पे पटकिए पिताजी। आप अपने ऊपर अपनी बेटी दामाद का कष्ट, अपने सत्यम सुप्रिया का कष्टों को ना ले गुरुपा। जो पिताजी जो जहाँ जिसके पास भेजता है उसी को जवाब मिलेगा, तभी तो उसको अकल होगा गुरुपा। क्योंकि आज से नहीं गुरुपा, आप हम लोग को कष्टों को झेल रहे हैं, हम लोग से ज्यादा पिताजी आप उस कष्ट को झेल रहे हैं गुरुपा। मेरे पापा पिताजी आपने बोले हैं कि तुम्हारे हंसने के दिन आ गए हैं, रोने के दिन नहीं आए हैं। अभी दुष्ट पापी आपको किचन में धमकी दे रहा है गुरुपा कि तुम्हारा इज्जत नहीं रहने देंगे। और जो आंटी जी का एक सत्संग सुने थे वो बोल रही थी कि आके बोलता है ए ए, तो ये चीज मेरे साथ भी हो रहा था गुरुपा। मेरे हस्बैंड जाके उठाते हैं ए करके, तो उनको हम बोले कि नाम नहीं बोलने आता है। अब उनको डांटना है गुरुपा कि ए करके मत उठाइए, क्योंकि मेरे पति के शरीर पे हमेशा ब्लैक मैजिक डाला हुआ रहता है। क्योंकि बड़े बेटे हैं इसलिए ये लोग बहुत बड़ा बेटा को खत्म करना चाहा, लेकिन मेरे गुरुपा के सामने सारी औकात, सारी चाल, सारी छल भस्म हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो जाए सदा सदा के लिए। उस पिंटू मांझी की औकात मेरे गुरु पिता के सामने भस्म हो जाए, उसकी औकात भस्म हो जाए, उसकी औरत छुछुंदर की जो मेरा साड़ी को फाड़ती है ला करके, ब्लैक मैजिक डालती है, नील डालती है, मेरे हस्बैंड के कपड़ा में ब्लैक राख डालती है, मेरे हस्बैंड के कपड़ा में, बच्चों के कपड़ा में, मेरा कपड़ा में कुत्ता घिस के ले जाती है गुरुपा। कोई भी मैं साड़ी अच्छा नहीं पहन पा रही हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा ने आशीर्वाद दिए हैं कि सोने सोने कपड़े पहनो। थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा पेट दर्द अभी सभी ठीक हो जाए पापा। मेरे पेट में जो कैंसर का बहाना ये लोग किया है पति पत्नी ब्लैक मैजिक के द्वारा, बाहर लौटा के कोई गंदी औरत या मेरे पुश्तैनी घर का गंदी औरत, गंदे मर्द, उस सबको सबक सिखाए मेरे गुरुपा, सबक सिखाए, सबक सिखाए। मैं बाहर बर्तन धोने जा रही हूँ गुरुपा, जहाँ वो गाड़ी लगाया है। सो मेरी रक्षा करना, सुप्रिया की रक्षा करना, अपने दामाद की रक्षा करना, अपने सत्यम की रक्षा करना। रांची के नाम से सारे ब्लैक मैजिक भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। तो मेरे ऊपर जो ब्लेम लगा है गुरुपा खेत के नाम पर, उसे नष्ट करे, नष्ट करे, नष्ट करे। इसमें कोई भी दम न रहे गुरुपा। तभी हमको चक्कर और घुमाने लग रहा था, क्योंकि दीपावली में लोग बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं। ये लोग तो बैंड कर दो खेल को गुरुपा जी पिताजी परमात्मा जी शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय कृपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय कृपा सदा सहाय। मैं बर्तन धो करके गुरुपा मैं जल्दी से दिया बाती कर लूँ गुरुपा की। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। फिर भी धमकी देता है कि तेरे दरवाजा पे दिया जलाना बंद करवा देंगे, ऐसे धमकी देता है गुरुपा। बताइए मेरे पूजा से वो लोग का कितना जलन हो रहा है, तो लोग जल के भस्म हो जाए और मेरे गुरुपा का सेवा सिमरन और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। दीपावली के टाइम में मुझे हमेशा टारगेट बनाया जाता था, और दीपावली के टाइम में मुझे हमेशा बर्बाद किया गया है। जो औरत के बारे में हम बार बार जिक्र करते हैं, वो औरत का छत से पूरा परमात्मा जी मेरा हॉल दिख रहा है, मेरा बरामदा दिख रहा है, मेरा गाड़ी दिख रहा है। उस सुंदर औरत के माँ बेटी के सारे सुंदराही को नष्ट हो जाए सारा ब्लैक मैजिक जो भी घर में भेज रही है, वो रंडी औरत की छुछुंदर की औकात भस्म हो जाए सदा सदा के लिए। मेरे पति के ऊपर उसका कोई भी औकात ना रहे, भस्म हो जाए सुंदर औरत की सारी शक्तियाँ जो भी मेरा देगा पति उसको हमेशा लगा लगा करके गुरु मेरे पति के सामने उसको बुरा बनाया जाता है, मेरे पति के साथ उसको चिपकाया जाता है, ताकि 12 लोटा की गंदी शक्तियाँ मेरे हस्बैंड पे रहे। आज मेरा पति सब दिन बर्बाद रहे, लेकिन गुरुपा के हाथों में है सब कुछ। मेरा पति को बर्बादी से बचाइए गुरुपा, मेरे पति के साथ फ्रॉडबाजी करने वाले हो, क्लेम करने वाले से बचाइए, और उस रंडी औरत को सदा सदा के लिए नष्ट कर दीजिए। ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर से, बेटा के ऊपर से, बेटी के ऊपर से,
मेरा वो मौत का तमाशा देखना चाहती है छुछुंदर औरत, ताकि वो पति जैसा सोए फिर मेरे पति को बुला बुला के रात में। ऐसा वो हरकत करते थे गुरुपा, और मेरे घर वाले सारा सपोर्ट उसी को करते थे कि नहीं वो गलत नहीं है, जबकि ये देखो छिपा रहस्यमय कहानी को नष्ट कर दो गुरुपा। जो भी मेरे पति के मोबाइल में गंदी शक्तियाँ आता जाता है उसे भस्म करे, और मेरे पति के मोबाइल से उस छुछुंदर औरत का नंबर को नष्ट कर दें गुरुपा। जो भी सिम लगाए हैं गुरुपा, ये 2-4 दिन पहले सिम फिर से लगाए हैं उस औरत से बात करने के लिए, ताकि इनका माँ बाप जिंदा रहे। क्या किसी से बात करेंगे, हम गंदा काम करेंगे तभी कोई जिंदा रहेगा, तो क्यों ये लोग ऐसा देता रखा है, ये लोग जाने, हमको कुछ नहीं पता। मेरे शरीर को रक्षा करे, सुप्रिया के शरीर को रक्षा करे, अपने दामाद बेटे के दिमाग बुद्धि को इतना शुद्ध कर दें, इतना स्वच्छ कर दें कि किसी की औकात न रहे मेरे पति के ऊपर। हम पति पत्नी के प्यार में तीसरा मर्द तीसरी औरत नहीं आए गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। आपका सत्यम के दिमाग बुद्धि सदा चमकता रहे, सुप्रिया के दिमाग बुद्धि चमकता रहे। अपनी बेटी दामाद की रक्षा करना। शुक्राना गुरुपा। सर्दी खांसी से मुझे बहुत तबाही लग रहा है, मेरे शरीर को अभी से भी सुरक्षित करें गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपने बोले हैं कि तेरे पास समय नहीं है, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर। ये लोग तो 24 घंटा चाहते हैं गुरुपा कि हॉस्पिटल इसको पहुंचा दे, बेड पर पड़ा दे, उसका सारा चीज़ ख़त्म कर दे। सो आप जाने गुरुपा अपनी बेटी का हाल, क्योंकि आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने वाले हैं। वो औरत नाच नाच के अभी छत सफाई कर रही है गुरुपा, आज मेरे हस्बैंड के ऊपर डोरा डालेगी। उस डोरे को काट देना, उसकी नज़र को भस्म कर देना, क्योंकि उधर से ही जाते हैं गुरुपा आना जाना, और उस रास्ता में पूरा ब्लैक मैजिक डाला हुआ है। हम कितना ही मना करते हैं गुरुपा कि इधर से जाइए, लेकिन मेरा बात नहीं मानते हैं। उस औरत की सारी गंदी शक्तियाँ नष्ट हो जाए, मेरा देव और गोतनी का सारा ब्लैक मैजिक भस्म हो जाए मेरे पति के ऊपर से। बस गुरुपा, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, मेरे घर में कोई कलह क्लेश ना हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा, सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना गुरुपा। सत्यम सुप्रिया का रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। थैंक यू डिवाइन पिताजी, थैंक यू गुरुपा जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हर एक सहारा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हम चारों फैमिली को सांस को बकसने के लिए शुक्राना गुरुपा। मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, सभी अच्छे चाहने वाले की तरफ से शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।